pupil of Guru Sri Mysore B. Nagaraj, and he is going to present Kathak. He is going to be portraying Radha. Radha's love was of the purest form. It was not physical but more of spiritual towards Krishna. Radha is waiting for Krishna's arrival at the appointed place at the appointed time. But as usual, Krishna doesn't come. She's waiting. The sun has set, the moon has risen, and the stars have come open in the night sky. And finally, when Krishna arrives, she says, Krishna, you don't seem to understand the kind of love I have. I'm not like the other women who are looking for physical companions, physical pleasures with you. But my love is of the purest form and spiritual. You will never understand being a man, but even just for a moment, not for a day, but for a moment, if you become Radha, you will definitely understand the feeling I have for you. So the portrait here is Krishna, for a moment, becomes Radha to experience what she's going through. And finally, Krishna realizes how deep the love and how pure love of Radha was. Krishna has been portrayed here as a mere mortal because Vishnu came again and again, born on this earth, to experience what a mortal goes through. And Radha teaches him a lesson.
She will be presenting Sita in the Odissi dance style. बसी श्री रघुनायक करत चरित सुर मुनि सुखदायक बीच दश कंधर देखा आवा निकट जति के वेशा करि अनेक विधि छल चतुराई मांगे भीख दशानन जाई
ना देनी सयानी विधि गति वाम कार्य कठिनाई रेख लांगी सिया बाहर आई। तब रावण निज रूप दिखावा वही समय जब नाम सुनावा क्रोधवंत तब रावण निहसी रथ बैठाई चला गगन पथ आतुर भय रथ आकी न जाई।
बस क्रोध निश्चर खिसियाना, काढ़े सी परम कराल कृपाना, काटे सी पंख पराग धरनी, सुमिरि राम करि अद्भुत करनी, करती बिलाप जाति नभ सीता, व्याध विवश जनु, मृग सभीता। We have our last two हाँ, तू अंदर performers जा, left for तू अंदर this जा। evening. I request all audience members to remain a little more patient and support Sakshi Pujari, a हाँ, disciple थोड़े of हम लोग आ रहे, Srimati थोड़ा last पे आओ। Gayatri Subramaniam ji. She will be presenting Ahalya in उधर ही अभी Bharatanatyam. लास्ट में निकल रहा हूँ। जियादमंद सौंदर्य स्वाधीन स्वर्गनायक रामपद रजोदन्य रामपद रजोदन्य गौतमस्य कुटुम्बिनी जियादमन्द सौन्दर्य स्वाधीन स्वर्गनायक रामपद रजोदन्य गौतमस्य कुटुम्बिनी गौतमस्य कुटुम्बिनी गौतमस्य कुटुम्बिनी
lights, we'd like to thank Saidi Lights. On the sound, we had Shaukat Ali. A huge round of applause while we thank all the supporting. We had Srinath Kumar Patilji on the photography and videography, and all the paper publicity which you have seen. We'd also like to thank the Ministry of Culture for extending their support, the P.R. Deshpande Maharashtra Kala Academy, and lastly the governing council members of Sarkoji Raje Bhosle Center and the team of Kala Culture. One last announcement, in the third week of August, we have one more paper presentation by young dance researchers. This time the paper presentation has to be with a PowerPoint presentation. The topic for this seminar is My Dance Style and Me. So all interested dance scholars, dancers, aspirants are invited to write for this seminar. Thank you. The last and concluding performance is a Kathak performance by the trio Bhakti Bhatardekar, Parinita Shah and Vaidehi Parshurami. They will be presenting Sant Kanopatra, a women saint of Maharashtra. They are disciples of late Guru Asha Joglekar ji and they will be performing Kathak. Thank you all for being such a wonderful audience. Let's welcome the trio. नमस्कार, आदरणीय गुरुजन, उपस्थित मान्यवर और रसिक प्रेक्षकों को मेरा विनम्र अभिवादन। सर्वप्रथम हम डॉक्टर संध्या पुरेचा जी के बहुत बहुत आभारी हैं। युवा कलाकारों के लिए इन्होंने इतना अच्छा रंगमंच उपलब्ध करके दिया है। आज हम आपके सामने एक अनोखी प्रस्तुति लेकर आए हैं। कथक नृत्य के बारे में कहा जाता है, कथयति यह सह कथका, यानी जो कहता है वो कथा। प्राचीन काल में उत्तर हिंदुस्तान में कथक नाम के लोगों का एक समुदाय रहा करता था। ये लोग ईश्वर की लीलाओं के, ईश्वर की कथाओं के अभिनय द्वारा, नृत्य द्वारा लोगों के सामने तो ये कथक लोगों के सामने परमेश्वर की कथाएं प्रस्तुत करते थे। आज हम भी आपके सामने ऐसी ही एक कथा लेकर आए हैं। ये कथा है 15वीं सदी की मराठी संत कवयित्री संत कान्होपात्रा। संत कान्होपात्रा मंगलवेढा गांव में कान्होपात्रा नाम की बहुत ही सुशील सुंदर युवती रहती थी। उसके सौंदर्य का जितना वर्णन किया जाए उतना कम ही है। सुकुमार असेती फार धेंगणी मूर्ति, पाहून वदन ते पडे रतीची भ्रांती, ओष्ठते प्रवालापरी कुटीर कच शिरी वक्रशा भ्रुकुटी, वाटते मदन ओढून करी घन दृष्टी, सुकुमार असेती नार। न केवल वो सुंदर थी, लेकिन नृत्य और गायन में बहुत ही निपुण थी। उसकी नृत्य की अदाएं देख पाने वाले के, देखने वालों के होश ही उड़ जाते थे।
मी तुझ्यासाठी मनात झुरतोय ग. माझ्याकडे भरपूर पैसा अडकाय. तुझ्या सेवेला दासदासी ठेवीन. तुला फिरायला पालखी देईन. तू माझी हो ग. कान्होपात्र म्हणते, तू झालास म्हातारा, झाडाच्या वाळलेल्या पानांसारखा. मला तुझा काय उपयोग? यमराज बघ हसतायत तुला. तुला घेऊन जाण्यासाठी वाटच बघतायत बघ. अपमानित होकर वो वृद्ध वहां से चला गया. And in this manner, Kanopatra rejected all advances of such unethical, unscrupulous, lusting men. फिर आगे क्या हुआ? आगे चलिए अपनी आंखों से ही देखते हैं क्या होता है. चलिए देखते हैं. ऐसे ही समय बीतता गया और एक दिन वारकरियों का समुदाय मंगळवेढा यानी कान्होपात्रा के गाव से पंढरपूर जा रहा था. ते सगळेच वारकरी हरिनामाच्या गजरात तल्लीन झाले होते. जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण. सगळेच गाऊया. जय जय राम कृष्ण हरी, 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 जय जय राम कृष्ण हरी. या अशाच विठ्ठलाच्या नामस्मरणात विठ्ठलाचे सुंदर वर्णन ऐकून कान्होपात्रेची काय अवस्था झाली हे आता आपण पाहूया. सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी. सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी. करकटावरी ठेवूनिया. सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी. सुंदर ते तुळसी हार गळा कासे पीतांबर. तुळसी हार गळा कासे पीतांबर. आवडे निरंतर, आवडे निरंतर तेची रूप. सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी. सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी. सुंदर ते ध्यान. ऐसे विठ्ठल के सुंदर वर्णन में कान्होपात्रा मानो अपने होश ही खो बैठी. होश आते ही उसने वारकरियों के सामने अपने मन की एक इच्छा व्यक्त की. ती म्हणाली, पंढरीनाथ पंढरीनाथ गावा, करावी कशी त्याची सेवा. तीही सांगा सांगा की रमारंगा, भेटवा मजसी पांडुरंगा. ते ऐकल्यावर वारकरी तिला म्हणाले की तुझं हे छान छोटीचं आयुष्य सोडून विठ्ठलाची भक्ती करणं तुला शक्य होणार नाही. तेव्हा कान्होपात्रेने निश्चय केला, विठ्ठलाच्याच भक्तीत तिचे उर्वरित आयुष्य घालवण्याचा. तिला फक्त विठ्ठलाची ओढ लागलेली. हे सुखवस्तू आयुष्य सोडून सगळ्या भौतिक सुखांचा त्याग करून ती शुभ्र वस्त्र नेते, वैराग्याचा मार्ग निवडते.
शुभ्र वस्त्र नेसून पंढरपुराला विठ्ठल भक्तीत जाण्यास सज्ज होते आणि ते पाहून वारकरी देखील तिला त्यांच्यातच सामावून घेतात. और इसी तरह कान्होपात्रा पंढरपुर पहुंच जाती है. अब मंगलवेढ़ा गांव के थानेदार के मन में कुछ और ही षड्यंत्र रच रहा था. वो सोच रहा था कि क्यों ना बेदर के बादशाह को प्रसन्न करने के लिए मैं उसे तोहफे के तौर पर कान्होपात्रा पेश करूं. इसलिए वो कान्होपात्रा की खूबसूरती का वर्णन किया हुआ एक पत्र बेदर के बादशाह को भेजता है. बादशाह जब ये पत्र पढ़ता है तो ठान लेता है कि मैं पंढरपुर अवश्य जाऊंगा. वहां पंढरपुर में कान्होपात्रा विठोबा के भक्ति में पूरी तरह से लीन हो चुकी होती है. कहा जाता है कि इसी काल में उसने विठुराया के गुण गाते हुए अनेक भजन अभंग लिखे. जब बादशाह पंढरपुर पहुंचता है और कान्होपात्रा को देखता है तो उसे कहता है, दिल जानी मेरी कान्हो, मुझे तू ही है खुदा. दिल लगा है मुझ पे तेरा, मैं बनूंगा गुलाम तेरा. अब देरी ना कर, चल बिदर को, मैं बस बिल्कुल दीवाना हो चुका हूँ तेरा, सिर्फ तेरा. यह सुनकर कान्होपात्रा कहती है, मैं आपकी बेटी के समान हूँ. क्या एक पिता अपनी बेटी को इस नजर से कभी देखता है भला? आप राजा है, राजा यानी हमारे लिए भगवान जैसे. आपका कर्तव्य है कि हमारी प्रजा, आपकी प्रजा हमें सुरक्षित रखना. ये राजधर्म भूलिए मत. लेकिन बादशाह ने उसकी एक नहीं मानी. वो निश्चय करके ही आया था कि वो कान्होपात्रा को बेदर लेकर ही जाएगा. अब इस उलझन से कान्होपात्रा बचे तो कैसे? तब बड़े चतुराई से वो एक तर्क निकालती है. कहती है, जाने के पहले मुझे बस एक आखिरी बार मेरे विठोबा का दर्शन लेने दीजिए. और भीतर जाकर असहाय प्रार्थना करती है. देवराया संत तपाहो प्राणः सर्वथा जाऊ पाहे. नको देवराया संत तपाहो प्राणः सर्वथा जाऊ पाहे. नको देवराया. भगवान हमेशा प्रकट हो ही जाते हैं. अब द्रौपदी का ही उदाहरण ले लीजिए. जब भरी सभा में उसका चीरहरण किया जा रहा था तब भगवान कृष्ण उसकी सहायता करने जरूर पहुंचे थे. इसी तरह कान्होपात्रा की भक्ति देख पांडुरंग स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने उसे अपने दिल में स्थान दिया. अब बादशाह बाहर खड़े खड़े बड़ी देर से कान्होपात्रा की राह देख रहे थे. बेसब्र होकर अंत में उन्होंने अंदर जाके देखा तो
कान्होपात्राने अपना सर्वस्व विठोबा के चरणी समर्पित कर दिया। आपण पाहिलं कान्होपात्रेने आयुष्यातल्या सर्व सुखासीन सोयींचा त्याग केला आणि विठ्ठलाच्या प्राप्तीसाठी खडतर मार्गाचा अवलंब केला। आपलं कलाकारांचं जीवनही असंच असतं नाही का? म्हणजे बघा ना, आपल्या डोळ्यासमोर एक ध्येय असतं, कलेचा ध्यास असतो, मग आपण त्या मार्गावर वाटचाल करतो। वाटेत अनेक अडथळे येतात, अनेक अडचणी येतात, मात्र त्या संकटांमध्ये डगमगून न जाता जेव्हा पराकाष्ठेने प्रयत्न करून आपण कलेच्या मार्गावर ध्यासाने चालत राहतो, तेव्हा कुठे ते ध्येय आपल्याला गाठता येते। आपल्या आजूबाजूला अशी अनेक उदाहरणं पाहायला मिळतील। अनेक बुजुर्ग कलाकार आहेत ज्यांनी आपलं जीवन हे कलेसाठी समर्पित केलेलं आहे आणि कलेतून मिळणारा अलौकिक आनंद ते अनुभवतात। And hence, we chose Kanhopatra for today evening. Because she serves to be an inspiration to each one of us present here, not just as an artist, but also as a human being. She gives us inspiration to fight our battles, achieve our goals in our life, however difficult the journey is. In this spirit, we would like to conclude with one of Kanhopatra's beautiful creations, a devotional song, Abhanga, as we call it, in Rag Bhairava.